एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ।
ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ,
ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਇ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।
केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद। सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकारो, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਮਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਭੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀ ਜੈ
ਜੀਓ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ। ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵਹਿ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਧਾਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਧਾਰੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਪੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ
सत संग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो, बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो, बिन संगत मैल परिजय जियो, जियो। कर संगत तू साध के, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध के, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध के, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआओ। ऐथे मिले वडाइया, दुर्गे पावे थाओ। जियो प्राण मन तन हरे, साचा एहो सुआओ। ऐथे मिले वडाइया, दुर्गे पावे थाओ। कर संगत तू साध के, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की। मेरा तन अर धन मेरा, राज रूप में देश। सुखदारा बनता ने, बहुत रंग परवेश। मेरा तन अर धन मेरा, राज रूप में देश। सुखदारा बनता ने, बहुत रंग परवेश। हर नाम हृदय ना बस, कर
कारज कितै न लेख हर नाम हृदय नावसै कारज कितै न लेख कर संगत तू साधकी 68 तीरथ नाओ 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 कर संगत तू साधकी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके तरस से ये चालियाँ चालू है। और इस चाली का प्रकरण श्री जपजी साहिब जी की वाणी के अर्थ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। और पौड़ी चालू है, सोचे सोच न हो गई। इस पौड़ी की पहली पंक्ति, सोचे सोच न हो गई, जे सोची लख बार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कई प्रकार के तीर्थों का जिक्र है। अब उनमें से एक है, हमने कई तीर्थों का पहले उस पर विचार किया। सतगुरु को तीर्थ का दर्जा दिया है, नाम को तीर्थ का दर्जा दिया है, सत्संगत को तीर्थ का दर्जा दिया है। अब बारी आती है साधु की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संत की शब्द श्रवण कर रहे हैं। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फुरमा रहे हैं, कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एकदम स्पष्ट अर्थ है इसके। साधु की संगत को तीर्थ का दर्जा दिया है, क्योंकि तीर्थ का भाव जहाँ पर मन की मैल उतरे, शरीर की नहीं, मन की मैल। सतगुरु मन की मैल उतारते हैं, सत्संगत मन की मैल उतारते हैं, नाम मन की मैल उतारता है। और अब साधु संत मन की मैल उतारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी संगत मन की मैल उतारती है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इसे प्रमाणित कर रहे हैं, कर संगत तू साध की, कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। साधु की संगत कर ले, 68 तीर्थों के स्नान का फल तेरी झोली में पड़ जाएगा। भाव तेरे मन की मैल उतर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात भीतर के स्नान की हो रही है, साधु की संगत। आइए पहले शब्दों के कुछ ऊपरी तौर पर अर्थ समझ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि साधु की संगत को तीर्थ का दर्जा क्यों दिया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा तन और धन मेरा, राज रूप में देश, सुत दारा बनिता अनेक, बहुत रंग और वेश, हर नाम हृदय ना वसई, कार्य कितै ना लेख। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मेरा तन और धन मेरा, राज रूप में देश। मेरा मेरा करते तेरा सारा जन्म जा रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, धन मेरा है, राज मेरा है, रूप मेरा है, मेरा देश है, बच्चे मेरे हैं, घरवाली मेरी है, मेरी है। दुनिया भर के रंग तमाशे मान रहा है, बहुत रंग अरिवेश। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज एक कमाल का पहलू कह रहे हैं कि ये सब कुछ परवान है, सब कुछ, अगर तेरे हृदय में नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरे हृदय में नाम चल रहा है, तेरा किया हुआ हर काम परवान है, मंजूर है। और अगर ये सब कुछ करते हुए तेरे हृदय में नाम नहीं है तो किसी लेखे में नहीं है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, नाम जपते हुए खाया हुआ भी पवित्र, पहना हुआ भी पवित्र, नाम जपते हुए किया हुआ हर कार्य पवित्र, और बिना नाम के चाहे नेक काम कर लो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितने सरल शब्दों में कहा है पातशाह ने। आगे कहते हैं, मेरे मन हर हर नाम ध्याए, कर संगत नित साध की, गुरु चरणी चित लाए। ये मेरे मन क्यों नहीं समझता, नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जपना कैसे है? साधु की संगत में बैठकर, वो भी रोज। कर संगत नित साध की, गुरु चरणी चित लाए। साधु की संगत कर, पर चित कहाँ जोड़? बड़ी ध्यान से समझना साध संगत जी, एक पंक्ति में कितने गहरे अर्थ छिपे होते हैं। ये नहीं कहा संगत साधु की कर, चित भी साधु के चरणों से जोड़, नहीं। कर संगत नित साध की, गुरु चरणी चित लाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम एक भूल करते हैं हमेशा कि चित भी साधु से जोड़ लेते हैं। संगत साधु की करनी है, चित गुरु नानक के चरणों से जोड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास को महापुरुषों ने सुमत बख्शी थी कि जब तू नाम जपता है कहाँ ध्यान धरता है। छोटा था बहुत दास, मैंने कहा बाबा कुंदन सिंह जी के चरणों का ध्यान धरता हूँ। कहने लगे नहीं, तू गलत कर रहा है। संगत बाबा कुंदन सिंह जी की कर, जो तुझे गुरु नानक से जोड़ रहे हैं, जो तुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ रहे हैं, पर ध्यान गुरु नानक के चरणों का केवल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत उसकी कर जो अपने से ना जोड़े, गुरु से जोड़े। पर ध्यान केंद्रित करना है तो गुरु के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत नित साध की, हर रोज। अब हर रोज कैसे करें? कहाँ से लाए बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुष? नित्य कैसे कर सकते हैं? कीर्तन करना, कीर्तन सुनना साधु की संगत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में आकर बैठना, नाम जपना साधु की संगत है। महापुरुषों का इतिहास पढ़ना साधु की संगत है। कर संगत नित साध की, अगर ये नहीं घर भर छोड़ के किसी डेरे में जाकर बैठ जाए, नहीं, घर में रहकर, गृहस्थी में रहकर, अमृत लौट के जब तू नाम जपेगा, साधु की संगत तेरी हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर संगत नित साध की, गुरु चरणी चित लाए। इसीलिए कहा है, कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाओ। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाओ। कर
संगत तू साध की 68 तीरथ नाओ। हर संगत तू साध की 68 तीरथ नाओ। नाम निधान ध्याये मस्तक होवे भाग। कारज सब सवारिये गुर की चरणी लाग। हम में रोग भ्रम कटिए ना आवे न जाग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। निधान खजाने को कहा है। नाम का खजाना उसे प्राप्त होता है जिसके मस्तक में बड़े भाग हों। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और बड़े भाग कैसे बने? कार्य सब सवारी गुरु की चरणी लाग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरण पकड़ ले। गुरु के चरण क्या है? सतसंगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत गुरु के चरण है। सतसंगत गुरु के चरण धूड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के वचन मानना गुरु के चरण धूड़ अपने माथे पे लगाने के बराबर है। फिर क्या होगा? हम में रोग भ्रम कटिए ना आवे ना जाग। तेरे अहंकार का रोग खत्म हो जाएगा, तेरे भ्रम खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा? तेरा जन्म मरण भी खत्म हो जाएगा। ना आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत तू साधु की साध की 68 तीर्थ नाओ। जीव प्राण मन तन हरे साचा एहु सुआओ। क्या होगा साधु की संगत से? तेरा जी, तेरे प्राण, तेरा मन, तेरा तन हरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जो आत्मिक मौत हो चुकी है हमारी, साधु की संगत करने से वो आत्मा जाग उठेगी, जी उठेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करे कराए आप प्रभु सब किछ तिस ही हाथ। मार आपे जीवालदा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभु शरणागति सर्व कटा के नाथ। सर्व कटा के नाथ। सिंपल पंक्तियां हैं, सिंपल अर्थ है कि वही मारता है वही रखता है। उसकी शरण ग्रहण कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज अरदास करके हमें बताने कि मैं नानक की शरण मांगता हूँ, हमें गुरु नानक की शरण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में यहाँ पर अगर वाणी के सटीक अर्थ करने हो तो नानक जहाँ पर आता है वहाँ पर विनम्रता का भाव है। गुरु नानक पाशा शरण मांग रहे हैं प्रभु के, पर हम ये कैसे कहें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए तो गुरु नानक ही प्रभु है, तो हम शरण मांगते हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरण क्यों? ताकि साधु की संगत मिल जाए। साधु की संगत, साधु की संगत के बिना चाहे कितना भी कोई ज्ञानी हो, चाहे कितना भी कोई कमाई वाला हो, अगर पूर्ण साधु की संगत नहीं है, एक दिन सब कुछ गवा बैठेगा। ये गारंटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत, अगर साधु का हाथ सर पर है ना, तो गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देते, खींच लेते हैं वापस सर पे हाथ रख के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन भटकने नहीं देते, नजर रहती है उनके। बाबा नंद सिंह जी के वचन है और महापुरुष दास को कहा करते थे, और मेरे सामने कई सत्संगियों को कहा करते थे। कहते थे जो हमारे हुक्म में रहता है ना, जो हमारे हुक्म में रह के काम करता है, या जो भी नित्यनेम हमने कहा नित्यनेम करो वो करता है, हमारी जिम्मेदारी आ जाती है उसकी रक्षा करने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नजर में वो रहता है, और साधु की नजर में आना इससे बड़ी क्या बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है कि हम उन्हें याद करते हैं, उनके ख्याल में रहना, और ख्याल में रहने का तरीका क्या है कि उनके वचन मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना याद आती है मुझे।
किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, किसी की माता की बहुत करीबी सत्संगी था। अब जो करीबी सत्संगी होते हैं ना, वो समझदार होते हैं। कई लोग बहुत समझदार होते हैं कि महापुरुषों को तकलीफ नहीं देनी, उनका समय व्यर्थ नहीं करना, आके बताना कि डेथ हो गई है फलाना दिन। बस सेवादार से कह दिया कि उनके कान में बस बात डाल देना, वो सुन ले बस कि ऐसा हुआ है। उनकी नजर में आ गई बात, मेरा काम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें पता चल गया, क्योंकि परिवार है, क्योंकि उनकी नजर में वो है, उन्हें पता चल गया तकलीफ में है, कोई दुख है, उनकी नजर में ही आ गया, ठीक हो जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को ताकत बख्श देनी है उन्होंने, जिस प्रकार का भी हो काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर संगत तो साध की 68 तीरथ नाउ, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। लाख बार स्नान कर ले, तेरा हृदय शुद्ध नहीं होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कर संगत तू साध की 68 तीरथ नाउ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली तीर्थ ये है साधु की संगत, ये कर ले। मानो तूने 68 तीर्थों का स्नान कर लिया, तेरे मन की मैल जो भीतर तीर्थ है वहां पर तेरा स्नान हो गया नाम के तीर्थ में, नाम के अमृत के तीर्थ में, और तेरा हृदय शुद्ध हो ही जाएगा। इस बात की गारंटी दे रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर संगत तू साध की 68 तीरथ नाउ। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर संगत तू साध की 68 तीरथ नाउ। गुरु अर्जन देव जी महाराज संत की, साधु की जितनी उस्तत गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी में की है ना, इनकी वाणी पर अगर विचार करेंगे तो बहुत ज्यादा उस्तत उन्होंने संत और साधु की है। सुखमणि साहिब जी के तो पूरी अष्टपदी साधु की संगत पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर एक पूरा कितने शब्द है, उनमें से एक अनमोल शब्द कि साधु की संगत करती क्या है, साधु की संगत का लाभ क्या है, फल क्या है, श्रवण कीजिए। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता। अंधले त्रिपवन सूझे आहा, गुरपेट पुनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि साधु की संगत करती क्या है। पिंगल पर्वत पार परे, पिंगला शरीर गला हुआ है जिसका, शरीर में ताकत नहीं है हिलने की, पिंगला है, वो पर्वत को पार कर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत ये करती है जिसकी जो समर्था नहीं, जो इम्पॉसिबल चीज है उसके लिए वो भी वो पॉसिबल कर लेगा अगर साधु की संगत मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे मोटे उदाहरण नहीं दिए गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने। 5 में गुरु नानक कह रहे हैं पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता। मूर्ख हो, गधा हो, दिमाग में एक बात ना जाती हो, पर अगर साधु की संगत मिल जाए, खल चतर बकीता, चतुर बक्ता बन जाता है।
उसके बोलने पर हजारों लोग सुनने आते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्ख आदमी को दुनिया सर झुकाने लग जाती है अगर साधु की संगत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधले तिर भवन सूझिया गुरु भेंट पुनीता। कमाल की पंक्तियां है। अंधा जिसे दिखाई नहीं देता एक कदम भी, अगर साधु की संगत मिल जाए, यहाँ की नहीं तीनों लोगों की सोझी हो जाती, तीनों लोग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधले तिर भवन सूझिया गुरु भेंट पुनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। हृदय की तेरी मैल खत्म हो जाएगी जन्मों जन्मांतरों की, तेरा चित्त निर्मल हो जाएगा। कैसे? महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। आगे ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। जो जो कीनो जो जो कीनो अपनो तिसे अभय दान दीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। क्या कहे यहाँ पर? बड़ी ध्यान से समझना। और यहाँ पर साधु की संगत की बात नहीं हो रही। क्या कह रही? ऐसी भगत गोविंद की। गोविंद की भक्ति में इतनी ताकत है, प्रभु की भक्ति में इतनी ताकत है कि कीट हस्ती जीता। अब यहाँ पर बात आती है, अभी बात चल रही थी साधु की संगत की, अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु की भक्ति। विचार करो क्यों कहा है यहाँ पर प्रभु की भक्ति। साधु की संगत करते क्या है? भक्ति की जगा देती है प्रभु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु कौन? जिसने अपने मन को साधा हो। संत किसे कहते हैं? सांस्कृतिक अर्थ संत के पता क्या है? शांत। शांत से अक्षर बना है संत। जिसका मन शांत, जिसकी वासना शांत, जिसके 5 इंद्रियां काबू में शांत, क्रोध शांत, हर चीज जिसके काबू में, जिसने मन को साधा हुआ है, उसे कहते हैं संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ऐसे पूर्ण संत की संगत हो जाए तो भक्ति भावना जागती है, प्रीत लग जाती है प्रभु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर क्या होता है? ऐसी भगत गोविंद की, फिर वो भक्ति करती क्या है? कीट हस्ती जीता। चींटी हाथी को जीत लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके गहरे अर्थ पे विचार करें। कीट हस्ती जीता। चींटी कहा है विनम्रता को, हाथी कहा है अहंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चींटी और हाथी की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? पर यहाँ पर चींटी हाथी को जीत लेती है, विनम्रता अहंकार को मार देती है, भाव अहंकार खत्म कर देती है। ये गोविंद की भक्ति और विनम्रता जीत जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। संतों ने, महापुरुषों ने जिसे अपना मान लिया, अपना, उसे अभय दान दे देते। अभय दान किसे कहते हैं? निर्मोलक दाता। ये निर्भव, किसी चीज का डर नहीं रहता, किसी वस्तु के खोने का डर नहीं रहता, किसी चीज का डर नहीं रहता। डर खत्म जीवन में से। जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। साधु की संगत करने से अगर सेवा पर साधु प्रसन्न हो जाए, संत प्रसन्न हो जाए और सेवादार को अपना मानने लगे, तिस अभय दान दीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखिता। श्रम करते दम आद को ते गनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखीता। बिल्ली में शेर की ताकत आ जाती है। तृण मेर दिखीता, तिनका पर्वत की ताकत पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। श्रम करते दम आड़ को होते गणित नीता। आधे टके के लिए मेहनत करने वाले लोग, आधे आधे टके के लिए तरसने वाले लोग, आधी कौड़ी आधी दमड़ी, गरीबी भाव अत का गरीब हो कोई साधु की संगत हो जाए ते गनी धनीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर साधु प्रसन्न हो जाए, संत की संगत करनी आ जाए। एक्चुअली संगत करने का भी ढंग होता है। ये अभी एक पूरा ही अलग प्रकरण है कि साधु की संगत करते कैसे हैं, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और उसमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। साधु की संगत कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये एक एक चीज मायने रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अलग प्रकरण गुरु मेहर करे किसी दिन लेंगे, पर बात चल रही है श्रम करते दम आड़ को ते गणित तनीता। मेरी आंखों के सामने इस वक्त इतने उदाहरण आ रहे हैं, इतनी यादें मुझे आ रही हैं कि कितने लोगों को मैंने अपनी आंखों से, कि जैसे ये समझ लो भीख मांगने की नौबत है और आज आलीशान बंगलों में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ते गणित नीता, क्यों? साधु की संगत सही ढंग से कर ली उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक उदाहरण तो हमारे बॉम्बे का ही है। अदियम्मा हुए हैं, अदियम्मा राधाबाई, संत अदियम्मा, संत बाबा थारा सिंह जी के बाद। सायन में रहते हैं। सायन में जाके कहाँ रहते हैं? जिनके घर में रहते हैं उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद कोई सिख है, सिंधी सिख। वो हाथ गाड़ी लगाते थे, समोसे बनाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ गाड़ी पे समोसे बेचते थे। आज प्रत्यक्ष उदाहरण है उनका। एक छोटी सी मिसाल याद आ गई, दास बोल रहा है। समोसे की हाथ गाड़ी लगाते थे। वो अदियम्मा क्या करते थे, जब शाम का समय होता था, अभी सेल का समय, लोग आएंगे स्टेशन से, छूटेंगे, उस समोसे खरीदेंगे, खाएंगे, वो हाथ खींच कर उसे ले जाते थे, उस सिंधी सिख को। इसका नाम शायद मोहन सिंह, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। यह घटना उन्होंने मुझे खुद बताई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साइन हाथ गाड़ी पे लिखा हुआ तो गुरु कृपा समोसे, और हाथ गाड़ी से छुड़ा कर खींच कर ले जाते थे। कहाँ? राय साहब जी का पाठ करना है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है गुरुद्वारे में, जो थोड़ी दूर पर ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हाथ खींचकर हाथ गाड़ी से ले जाते थे। समोसे वहीं पड़े, चाहे कोई उठा के ले जाए, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मुझे चिंता होती, मैंने एक दो बार कहा भी समोसे चोरी हो जाएंगे, कहने के कुछ नहीं होता, चल। हाथ गाड़ी से छुड़वा कर राय साहब जी का पाठ करवाना, हाथ गाड़ी से ले जाना, कीर्तन में बिठा देना, और आज साथ संगत दी। आज उन्हें समोसा किंग कहा जाता है बॉम्बे का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु कृपा समोसे वाले, पता नहीं कितने लाख समोसे रोज बनते हैं, कितने एक्सपोर्ट होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बीज बो दिया महापुरुषों ने, बीज। ये बहुत बड़ी यहाँ पर शिक्षा है, कोई लेना चाहे। नित्य तो सब करते हैं, काम छोड़कर जब कोई नेम करता है ना गुरु के लिए, जो गुरु को प्रेफरेंस देता है, जो गुरु को प्रेफरेंस देता है ना, गुरु उसे प्रेफरेंस दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राय साहब जी का पाठ लेट शेट सब करते हैं, पर जो काम छोड़कर भी ग्राहक बैठे, उन्हें छोड़कर भी जो राय साहब जी का पाठ करे। बाबा महापुरुष मुझे समझाया करते थे, राय साहब जी का पाठ का समय है 6:30 से 7:30 के बीच में परफेक्ट समय है, 6:45 बजे का। पर 6:30 से 7:30 के बीच में परफेक्ट समय, इसमें कोई भी कर ले कि परफेक्ट टाइम है राय साहब जी का। उससे लेट हो जाए तो 9:30 तक कैसे भी कर ले। महापुरुषों के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परफेक्ट टाइमिंग 6:45 बजे एग्जैक्ट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी मर्जी हर एक की है, जो गुरु को प्रेफरेंस देता है। मिसालें सामने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कवन वडाई कह सकूं बेअंत गुनीता, क्या वडाई कहूं मैं। बेअंत है, कर कृपा मोहे नाम देव नानक दर सरिता।
संतों की संगत की वडियाई में क्या कहूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं बेअंत हैं, बोलने पर बोली नहीं जा सकती। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा मोहे नाम देव, नानक दर सरिता। हे गुरु नानक, मेरी झोली में नाम की दात डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तेरे दर का मांगता हूँ, पर मिलेगी कैसे? साधु की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर संगत तू साध की, सच तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। कर संगत तू साध की, 68 तीरथ नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत, पर साधु कौन? कैसा संत होना चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत की पहचान क्या? संत की कई पहचानों में से दो पहचानें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहली पहचान, जिना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से ही नानका, पूर्ण सोई संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे हर श्वास में वाहिगुरु याद आए, जिसका हर श्वास सिमरन में बीते, वाणी में बीते, वो है पूर्ण संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों की अवस्थाएं होती है, छोटे संत, बड़े संत। दास ने पहले भी कहा था ना, अलग अलग क्लास के अलग अलग टीचर होती है, पर पूर्ण संत की बात की गई है। पूर्ण सोई संत, जिन्हें सास गिरास न विसरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दूसरी सबसे बड़ी निशानी, इसे समझने के लिए एक बड़ी प्यारी घटना है। संत करम सिंह जी होती मर्दान, जिनकी कुछ दिन पहले भी हमने कथा सुनी, कितनी कमाई है उनकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले जम्मू का राजा प्रताप सिंह इतिहास में नाम आया है। जम्मू का राजा प्रताप सिंह दर्शन करने आया। कुछ ऐसा रोग है कि सबके सामने बता नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के सामने सर झुका के बैठा है। शरीर रोगी है, दुख दो हैं इसके जीवन में। शरीर भी रोगी है, बहुत तकलीफ है, और घर में औलाद भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष अंतर्यामी, कमाई वाले, उन्होंने बिना मांगे ही उसे नेम दे दिया। ये नेम कर ले, गुरु नानक मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रसन्न होकर वो वहां से चला गया। नेम किया साध संगत जी, वचन महापुरुषों के थे, नेम निभाया जो महापुरुषों ने कहा था। वो नेम अगर कोई नया आदमी शुरू करे तो 3 से 4 घंटे का था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी कोई मूल मंत्र शुरू करता है ना, तो पहले एक माला में बहुत समय लगता है। 6 माला में किसी को 2-2, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। पर एक समय आता है, फिर 6 माला जो बच्चे हैं वो आधे घंटे में, 20 मिनट में कर लेते हैं। सहज ही, फास्ट नहीं करना पड़ता। समय अपने आप कम होते जाता है और अवस्था भी सहज होती जाती है अपने आप। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर एक समय आता है कि 40 माला भी करनी हो
तो सहज में 2 घंटे में 1 घंटे में हो जाती है, सहज में, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दास बात इसलिए बता रहा है कि कई लोग जल्दी घबरा जाते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा। नहीं, ये शुरुआत में लगता है, आगे चलकर नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नेम दिया कि 3-4 घंटे लग जाएंगे, पर उसने किया, निभाया, और नियत निरंकार की गुरु की कृपा कि बीमारी तो ठीक हो ही गई, घर में औलाद भी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा बहुत प्रसन्न है, अनहोनी हो गई। नेम में इतनी ताकत है, नाम की ताकत को पहचानो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? महापुरुषों की जमानत। जब कोई नाम जपने वाला महापुरुष आपको नेम देता है ना, उसे तो फटाफट कर लिया करो, सोचा भी मत करो कि ऐसे करें या वैसे करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वजह है, जब कोई नाम जपने वाला गुरुमुख प्यारा नेम देता है तो उसकी जामनी लग जाती है। गुरु नानक को वो बात माननी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमानत तो बहुत बड़ी हो गई ना, पीछे जमानत खड़ी है कि इसने कहा है, अब तो करना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीमारी ठीक हो गई, महापुरुषों की जामनी, और उसने वो वचन माने, बाणी पूरी, जो भी नेम दिया था पूरा किया। अब वो प्रसन्न खुशी से कई थाल भर के धन दौलत कर के लेकर आया, अपनी रानी के साथ, बालक को साथ में लाया, महापुरुषों के दर्शन करने आया। अब यहाँ पर बात होने जा रही है वो निशानी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कोई संत पूरा है या अधूरा, पहचान के लिए ये बात, ये घटना बहुत कीमती है। कई थाल भर कर ले आया, आगे रखे, और कहने लगा, ये छोटी सी बेटा प्रवान कर लो मेरी, आपके वचनों से मेरा दुख भी दूर हो गया, मेरे घर में खुशियां भी आ गई। मैं और कुछ तो नहीं दे सकता आपको, जो मेरे पास है वो मैं ले आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता से कह रहा है। जम्मू का राजा प्रताप सिंह, महापुरुष मुस्कुराए, कहने लगे, राजन तो अगर कुछ देना चाहता है तो हम जो मांगेंगे तुझे देना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का, ये थाल वापस ले जा, हमें जो चाहिए हम मांग कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने सोचा शायद कुछ बड़ी चीज मांगनी होगी, या तो धन कम है। अभी राजा तो यही सोच सकता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी उसके जगह होंगे, यही सोचेंगे ना कि शायद ये कम है, कोई बड़ी चीज मांगना चाहती है। पर महापुरुषों ने पता क्या कहा? कहने की, जो तुझे नेम दिया था अब वो कितनी देर में हो जाता है? जो नेम दिया था कितनी देर में हो जाता? तो कहने लगा, 1 घंटे में। पहले समय लगा इतने घंटे, पर अब 1 घंटे में सहज में हो जाता है। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले कहने लगे, बस हमारी भेंटा ये है, अब इस 1 घंटे को 2 घंटे कर दे, बस ये हमारी भेंटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया कि मांगा क्या है? मेरा जीवन ऊंचा उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नजर महापुरुषों की कहां पर है? सामने वाले के जीवन पर, जेब पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे थाल वापस भिजवा दिए, और मांगा क्या महापुरुषों ने? कि तू अपना नित्यनेम डबल कर ले, यही हमारी भेंटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी दूर की सोच महापुरुषों की। एक राजा अगर धर्मी हो गया, नित्यनेमी हो गया, तो प्रजा को कितना सुखी कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होती है पूर्ण संत की पहचान। पहली, नाम ना विसरे 1 सेकंड भी। दूसरा, नजर जीवन पर। बाबा नानक सिंह जी के पास जब भी कोई आता था, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, पर बाबा नानक सिंह जी हमेशा पूछते थे तेरा गुरु से प्यार कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला सवाल होता था बाबा नानक सिंह जी के, भाई तेरा नित्यनेम क्या है? कभी नहीं पूछा तेरा कारोबार क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नजर कहाँ पे? जग्यासु के जीवन पर।
कि जीवन इसका ऊंचा उठाना है, क्योंकि ये महापुरुष जो आते हैं इनका काम ही ये होता है, जी दान दे भगति लायन हर सो लैन मिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जेल है, जेल में कैदी बंद है। अब एक दानी आता है, सबको खाना खिला के जाता है, अच्छा अच्छा। कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता, कैदी खुश हो जाते हैं। फिर एक दानी आता है, किसी दिन कपड़े बांट के चला जाता है, नहीं खुश हो जाते हैं। कोई कुछ करके जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है। पर एक दिन एक आता है, कोई चाबियां लेकर आता है, सबको कैद से रिहा कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बताओ कौन बड़ा? ये होते हैं संत, ये होते हैं संत। संत हमें इस जीवन से, इस 84 की कैद से आजाद कराने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनसे बड़ा परोपकारी कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों अरबों दान कर दे। संतों से बड़ा परोपकारी कोई नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाम। कर संगत तू साध की, कर संगत तू साध की 68 तीर्थ नाम। 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 कबियो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तो चरण बन रहे। सुने
निकट न तिन नर के रहे, बोलो रागी एक बार चौपई को कहे। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहे, बोलो रागी एक बार चौपई को कहे। अनंत में अभिमानी सतगुरु में पाया, सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मनुष्य बधाई। राग द्वार पर शब्द गावड़े आई, शब्दों का गावो हरि के रावण जी बसाया। कहे मन कहना को सतगुरु में पाया, हे मन मेरे तू सदा हो हर नाम में, हर नाम हो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा काज संभालना, सुना सुना सो कमण विसारे। कहे नान मन मेरे सदा हो हर नाम, साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे। सदा से सदा तेरी नाम अनुसार है, नाम तुमके मानो से आवाजे शब्द रे। कहे नान सच्चे साहिब क्या नहीं करते रहे, सदा नाम राया हारो। सब गवाई अर्थान सुमणे वसे आज इच्छा सब बुझाई, सदा गुमान की जागर बेटो जिसकी है बढ़ियाई। कहे नान सुनो समझो शब्द रो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे मन शब्द कर सभागे, कर सभागे शब्द वाजे खलाज करता दिया। पंचदूत दिवस की दिवार तुम्हारे जो कर्म पाया, कितने को से नाम हर के लागे। कहे नान तस को अनुकरण वाजे, नाम सुनो मत पागियो सुन मनोरथ पूरे। पार न प्रपाया उतरे सगल सूरे, दुख रोग संताप उतरे श्री सच्ची बाणी। संत साज पहे सत्य पूरे गुरते जानी, सुनते प्रीत कहते कोई सतगुर है पर पूरे। वंदना निगुर चरण लागे वाजे अनंत पूरे, श्लोक पवन गुरु पाणी पिता देवसराज विदाई दाया। नीला सगल ग्रंथ जगे अमले आइया, वाजे धर्म दूर नगरिया को आपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम पे आया दैव सत्कार, जानते तुझे लेके दी शुद्धि काल। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी बना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी बना तेरे नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, नाम जपन दा वेला। गुਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਬਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਬਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦੂਸਰਾ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਰਤ ਜਗਤ। ਠਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਤਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਤੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा, हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
जय गुरु जी की।